United States of America has 50 states and a capital city. There's a letter of English alphabet that doesn't appear in any of the name of the US states. Do guess that letter and put it in the comment box. Greetings to all in Dr. Ava Chemistry Pathshala. So here we come towards the end of our journey of class 11 unit 12. So in my last class I had taken up Zeldal method, a very accurate method. In fact, the first internationally accepted method to find out the percentage of nitrogen in proteins. The method was very slow because it involved titration. So we are going to go for a better method, a faster version of Zeldal, equally accurate. Faster, equally accurate, cost effective, much cheaper than Zeldal, environmental friendly because it doesn't involve any catalyst like mercury or copper sulfate which was used in Zeldal flask. It is applicable to all nitrogenous compound which can liberate free nitrogen. We first convert the nitrogen in the organic compound into free nitrogen, that is the N2 form, and this N2, the volume is measured and the pressure and temperature are measured. Simple, barometer and thermometer, and whatever pressure, temperature and volume we get, we convert these conditions into at the STP conditions. So once we get volume of nitrogen at STP, we can find out the mass. Each one of you know 22.4 liters of any gas has mass equal to the molar mass of the gas. So जो भी आपका volume निकला है STP पे, आपने उसको 22.4 liter of nitrogen will have 28 grams of nitrogen से unitary method लगाना है, and you have to find out the mass of nitrogen. एक बार mass of nitrogen निकल गया, mass of organic compound आपके पास से आपने percentage निकाल ली. Very simple. Calculation करना चाहोगे, screen पे चलते हैं. The Dumas method is applicable to find out the percentage of nitrogen in organic compound. It was first described by Baptiste Dumas in 1826, and the main advantage of Dumas method is that it's easy to use and it is fully automable, right? And it is faster than Zeldal, which is a very common method to find out nitrogen presence in organic compound, and the amount of time taken in Dumas is much less than the amount of time taken for Zeldal if we consider reading by it. And the principle of Dumas method is, it is based on the fact that the nitrogenous compound, when heated with cupric oxide in an atmosphere of CO2, it will give free nitrogen, and whenever we get this free nitrogen, we make use of this free nitrogen to find out the percentage of nitrogen in the organic compound. And these traces of nitrogen the traces of nitrogen oxide, in case they are present, in some cases they are reduced to elemental nitrogen, that is N2, by passing over heated copper. Let's first move on to the apparatus. Now in the apparatus, I have not shown, in fact I couldn't get the picture. I wanted to show you the first part, which is CO2 generator. The first part is CO2 generator. गाइस यहाँ पे होता है CO2 जनरेटर, और ये CO2 को जनरेट करता है और वो CO2 अंदर जाती है, ठीक है. और CO2 जनरेटर के बाद जो सेकंड पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट है, उसे आप कहते हो कंबशन चेम्बर, उसे आप कहते हो कंबशन ट्यूब या फिर कंबशन चेम्बर. वो इस तरह की एक ट्यूब होती है, जैसे मैंने आपको दिखाई हुई है, एक अप्रॉक्सीमेटली 100 या 90 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है, और इसकी जो डायमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है. इस तरह की कांच की ट्यूब होती है. ये बहुत हार्ड ग्लास होता है विच डजंट गेट ब्रोकन ईजिली, आई मीन मेल्टेड ईजिली. ब्रोकन तो ऑफ कोर्स इट विल, बट मेल्ट नहीं होता है. और इसके अंदर आपने क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स लगाते हो. सबसे पहली लेयर होती है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड की गॉज होती है. गाइस गॉज इज़ एज गुड एज समथिंग लाइक जो आपके नॉर्थ में बेटा कूलर्स होते हैं, कूलर्स के अंदर आपको पता नहीं झाड़ सी लगी रहती है, जाली सी लगी रहती है, उसे हम गॉज कहते हैं. बट हमारी थोड़ी सी मेटालिक होती है, बैक फ्लो को रोकती है पहली वाली जो गॉज है. इसके बाद जो सेकंड गॉज होती है, इसमें क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो कोर्स रफ जो आप पैडिंग लेते हो, रफ उसका गॉज का फाइनर लेके उसके साथ ये आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का रखते हो. और लास्ट में आप रिड्यूस्ड कॉपर गॉज रखते हो. रिड्यूस एज इन, यू गेट माई पॉइंट. इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी ऑक्साइड्स हैं वो प्रॉपर आपका रिड्यूस होकर ओनली फ्री नाइट्रोजन
लास्ट वाले चेंबर में जाए, ठीक है। तो रिड्यूस्ड कॉपर आप यहाँ पे डालोगे एंड ये क्या करेगा बच्चे, इसके बाद आपने क्या किया, थर्ड में जाते हैं। तो पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर हो गया, दूसरा कंबशन ट्यूब हो गया, और थर्ड आपका जो होता है उसको आप कहते हो शिफ्स नाइट्रोमीटर। मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, सो मैं लिख देती हूँ गाइस, दिस इज नोन एज शिफ्स नाइट्रोमीटर। शिफ्स नाइट्रोमीटर क्या करते हैं, जैसे आपने देखा एक डिलीवरी ट्यूब होती है और यहाँ पर ये जो मैं डैश लगा रही हूँ ये मरकरी होता है, और मरकरी सील्ड होता है, यानी कि जो ऊपर का लिक्विड है या गैस है वो बैकफ्लो नहीं कर सकती है। और इसको आप KOH के साथ फिल कर देते हो और इसको कैलिब्रेट करते हो। यहाँ पर एक राउंड बॉटम में KOH होता है, और जो ऊपर आपके ग्रेजुएशंस होते हैं कि अगर गैस आएगी तो वो आपको पता चल जाएगा, राइट अगर गैस आएगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो कंबशन ट्यूब होती है, आई थिंक यू विल नीड डायग्राम, और डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा बना दूँ या सो जो कंबशन ट्यूब होती है गाइस, इसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाला, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, जो भी हाइड्रोजन होगा वो वाटर बना देगा, राइट। तो इस तरह से ना, और जो नाइट्रोजन होगा ना वो, क्योंकि आपकी रिड्यूस कॉपर है, वो सारी की सारी आपकी नाइट्रोजन का जो एलिमेंट होगा वो N2O में दे देगा, ठीक है। और अगर थोड़ी सी भी CO2 या H2O बाईपास कर जाती है इन शिफ्स नाइट्रोमीटर, तो वो क्या करेगी गाइस, वो यहाँ पर आपने, इसको कलर से मैं बताती हूँ, यहाँ पर आपने जो KOH लिया ना, इसमें ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही ऊपर पहुँचेगी। कहाँ पे पहुँचेगी, जहाँ पे ग्रेजुएशन है। तो आपको बेसिकली वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इमीडिएटली आपको वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो आपने पहले से वे करके रखा है, जो आपने कंबशन ट्यूब में लगाया है, तो उसको आपने W ग्राम पहले से माना हुआ था, ठीक है। और वॉल्यूम जो आप है उसको आप VmL मान लो, VmL मान लीजिए। कहाँ से पता चला, ऊपर आपके ग्रेजुएशन से। अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जो कलेक्ट हुई है ये ओवर KOH कलेक्ट हुई है, और इसके अंदर पानी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कई बार क्या होता है कि वाटर अपना वेपर देके प्रेशर को बढ़ा देती है, तो जिसको आप एक्वस टेंशन कहते हो। तो जो वाटर का एक्वस टेंशन होगा एट द एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर, उसको आप P एक्वस मान लोगे। इसको आप जो प्रेशर आप रीड करोगे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीड करोगे उसमें से P मान लो, तो उसमें से आप P एक्वस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। P एक्वस को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर। गाइस, आपको प्रेशर भी पता है, आपको वॉल्यूम भी पता है, ग्रेजुएशन से आपने थर्मामीटर लगाया और आपको टेम्परेचर भी पता चल गया कि कब कहाँ पे टेम्परेचर की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, कन्वर्ट करिए एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को ना, कन्वर्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस टू STP कंडीशन। तो यहाँ पे आपने लिखा एक्सपेरिमेंट और यहाँ पे आपने लिखा STP। एक्सपेरिमेंट में आपने लिखा PI मान ले, PE मान ले, P एक्सपेरिमेंटल, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन है। एक्वस टेंशन की वैल्यू आपको हमेशा दी होगी। वॉल्यूम आपने मान लिया V एक्सपेरिमेंटल, जो भी आया है, ठीक है। टेम्परेचर जो भी T एक्सपेरिमेंटल आया है आपने उसको केल्विन में ले लिया। STP पे प्रेशर, STP पे क्या होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वॉल्यूम हमें STP पे निकालना है, PSTP वी नो, VSTP वी हैव टू फाइंड आउट, एंड टेम्परेचर एट STP क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन, ठीक है। अब आपको ये पता है ना, आप क्या करेंगे, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 आप लगाएंगे, तो PE एक्सपेरिमेंटल, V एक्सपेरिमेंटल, TE एक्सपेरिमेंटल, दिस इज गोइंग टू बी PSTP VSTP अपॉन TSTP, ठीक है। आप इसमें आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, सिर्फ आपको जो चीज़ नहीं पता, आपको वॉल्यूम चाहिए STP पे। आपको वॉल्यूम STP पे पता चल गया, दैट्स द ओनली अननोन इन दिस बोथ द इक्वेशंस। सो नाउ यू नो व्हाट इज द वॉल्यूम एट STP, ठीक है। यू नो वन रिलेशन, जो भी वॉल्यूम आपका यहाँ पे STP पे आ रहा है ना, आपको एक रिलेशन पता है। आप इस वॉल्यूम को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू नो इट, 22400 ml का जो वॉल्यूम होता है एट STP,
ठीक है। इसमें नाइट्रोजन का क्या वेट होगा, जो भी मोलर मास है दैट इज 28 ग्राम्स होगा, ठीक है। तो गाइज VSTP पे क्या होगा, 28/22400 इंटू VSTP, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे ये वेट है ना 28 ग्राम्स का, 20 STP पे नाइट्रोजन का जो वेट है, तो वेट ये हो जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, तो ये हो जाएगा 28/22400 इंटू ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP, राइट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। गाइज इफ यू वांट यू कैन मेक दिस फॉर्मूला स्लाइटली इजियर फॉर योर सेल्फ। 28/22400, अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को, ये 8 टाइम्स है, राइट, ये वैल्यू 8 होगा, इसको अगर आप 100 से 100 काटा 8 टाइम्स आ जाएगा। सो आप इसको कर सकते हो, वॉल्यूम STP नाइट्रोजन का जो भी है डिवाइडेड बाय 8, राइट, इनटू W, this is going to be the, अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी। That was all about Dumas method. So between Zeldal and Dumas, what I have found out is kids, they find Dumas much easier, but importance wise I have seen Zeldal is more important when it comes to competitive exams. So till we meet in the next class, take care of yourselves. God bless.